Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing about the structure and function relationship between the protein with the help of example of a protein which is chymotrypsin, which is a proteolytic enzyme and is used in the digestion of proteins. So without wasting any more time, let us move towards the video. So before starting the video, I would like to request if you are new to my channel, please subscribe to my channel. Now, coming to the topic, the structure function relationship of protein, and we are taking the example of the enzyme chymotrypsin. Chymotrypsin is a proteolytic enzyme. Proteolytic means proteo comes from the word proteins and lytic means the lysis and lysis means breaking. So proteolytic enzymes are those enzymes which breaks the proteins, and when the proteins are broken they form peptides. As we all know that proteins are made up of amino acids, and each amino acids are bonded by peptide bond and they form the peptide, or you can say the polypeptide. So when an enzyme works on a protein and breaks it, it will not break it in any irregular manner. मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एंजाइम है जो किसी प्रोटीन को काट रही है तो वो कहीं से भी किसी प्रोटीन को नहीं काटेगी। एक पर्टिकुलर साइट होगा जहाँ पर कोई एंजाइम ऐड करेगी। तो जो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है वो जितने भी बल्कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे कि फेनिलएलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, उनके बगल वाली जो पेप्टाइड बॉन्ड होगी उस बॉन्ड को वो तोड़ेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक काम होता है एंजाइम का। तो दिस काइमोट्रिप्सिन विल एक्ट ऑन द एडजेसेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ बल्कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। नाउ दिस एंजाइम इज सिक्रीटेड इन पैनक्रियाज। तो अगर ये पैनक्रिया में सिक्रीट हो रही है और इसका काम है डिओडेनम में, तो पैनक्रिया में सिक्रीट होने पर भी ये पैनक्रिया के प्रोटीन्स को भी तोड़ सकती है। तो क्या होता है कि पैनक्रिया अपने प्रोटीन्स को बचाने के लिए इस एंजाइम को एज अ जाइमोजन या इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। जाइमोजेंस आर इनएक्टिव प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम्स। मीन्स जब वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होगी तब वो अपना काम नहीं करेगी, एंड इन दैट केस द काइमोट्रिप्सिन इज नोन एज काइमोट्रिप्सिनोजन। मीन्स जाइमोजन का जो ओजन है वो काइमोट्रिप्सिन में लग गया। ऐसे ही आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा जब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे डाइजेशन, तब पेप्सिन एंजाइम का भी इनएक्टिव फॉर्म था पेप्सिनोजन। ऐसे ही काइमोट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म हो गया काइमोट्रिप्सिनोजन, विच इज़ अ 245 अमाइनो एसिड प्रोटीन, एंड दिस inactive form is transported to the duodenum via pancreatic duct। और डिओडेनम में जाकर इस एंजाइम को अपनी एक्टिविटी करनी है। तो जब इसे अपनी एक्टिविटी करनी होगी उस समय ये एक्टिवेट होगा, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इन सीटू एक्टिवेशन। मतलब कि अपने साइट पर जाकर एक्टिव हो जाना, कि जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहीं पर ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन सीटू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन। मीन्स द एंजाइम इज कन्वर्टेड फ्रॉम द inactive form to the active form, and this occurs through the proteolytic cleavage of this chymotrypsinogen protein, and this proteolytic cleavage results in three peptides A, B and C. Means the active chymotrypsin protein is now composed of three peptides A, B and C. Now what happens in this active enzyme? Let us see. So this chymotrypsin when comes to the duodenum and now it will be active, means now it will hydrolyze the peptide bonds to cleave the proteins. So for any enzyme there is a active site, and
In the active site of chymotrypsin occurs a catalytic triad of 3 amino acids. Triad means 3, means this catalytic triad consists of 3 amino acids. What are these 3 amino acids? These are histidine 57. Histidine 57 means that the histidine present on the 57th position, and the second amino acid is aspartate 102, and the third is serine 195. Means the amino acid at 57th position, that is histidine, the amino acid at 102 position, which is aspartic acid, and the third, that is the amino acid at 195 position, which is serine. Now what happens that due to the unique folding of the protein, these 3 amino acids come in close contact with each other. ठीक है, हम सब जानते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो 3 डायमेंशनल में फोल्ड होती हैं और तब वो अपना कोई एक्टिविटी करती हैं. ठीक है, अब जब ये 3 डायमेंशन में फोल्ड होती हैं तो ये तीनों अमाइनो एसिड्स एक पास आ जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें एक चार्ज रिले सिस्टम ऑपरेट होता है. क्या है वो चार्ज रिले सिस्टम? तो आप सब जानते हैं रिले रेस के बारे में कि रिले रेस में एक पहले दौड़ता है बैटन लेके, वो दूसरे को पकड़ाता है, फिर दूसरा उस बैटन को लेके आगे बढ़ता है. सेम इसी तरह पर यहाँ पर चार्ज का रिले हो रहा है. मीन्स यहाँ पर जो बैटन होगा वो होगा चार्ज. तो क्या होता है कि सबसे पहले एस्पार्टिक एसिड एट 102 बोरोज एन H+ आयंस फ्रॉम द हिस्टिडीन. हिस्टिडीन अपना H+ तो एस्पार्टिक एसिड को दे देता है, लेकिन वो अपने H+ की पूर्ति करता है किससे? सेरीन 195 पोजीशन से. तो इस तरीके से जो H+ आयन है वो सेरीन से हिस्टिडीन में आया और हिस्टिडीन से एस्पार्टिक एसिड में आया. अब हम सब जानते हैं कि सेरीन के पास एक OH ग्रुप होता है और इसी OH ग्रुप में से सेरीन ने अपना एक H+ हिस्टिडीन को दे दिया. अब इस OH ग्रुप में से जब H+ आयन निकल गया तो हमारे पास बच गया O- रेसिड्यू, जिसकी वजह से ये जो सेरीन है ये रिएक्टिव हो गया और यही से रिएक्टिव सेरीन रेसिड्यू एक्टिविटी करेगा एंजाइम की. मतलब जो हाइड्रोलिसिस का काम है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम, वो करेगी ये सेरीन, हमारी रिएक्टिव सेरीन रेसिड्यू, विच इज़ एट 195 पोजीशन. मतलब कि और भी सेरीन रेसिड्यू हैं इस प्रोटीन में, लेकिन केवल जो सेरीन 195 वाला रेसिड्यू है जो कि चार्ज रिले सिस्टम की वजह से रिएक्टिव हो गया है, वही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा और एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बगल वाले पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा. अब जो भी हमारा एंजाइम है ये काइमोट्रिप्सिन, तो हर एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जिसमें कि सबस्ट्रेट जाकर बाइंड करता है. तो जो काइमोट्रिप्सिन की एक्टिव साइट है, दीज आर लाइंड बाय हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स. ठीक है, क्यों हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से लाइंड होगी ये? क्योंकि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें जो बल्कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं जिनको कि इस एंजाइम को काटना है, वो सबस्ट्रेट जब इस एक्टिव साइट में आकर बाइंड करेगा, कुछ देर रहेगा, तभी तो हमारी जो रिएक्टिव सेरीन रेसिड्यू है वो काम करेगी. तो जब हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड वाले ग्रुप वाले अमाइनो एसिड्स एक्टिव साइट के पास आएंगे, तो क्योंकि इस एक्टिव साइट में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं, तो जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के से हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड्स हैं उनके थ्रू ये बाइंड करेगी. और जब ये सबस्ट्रेट हमारा बाइंड रहेगा एक्टिव साइट पे, तभी हमारी जो सेरीन है 195 पोजीशन पे जो कि रिएक्टिव हो गई है, वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के जस्ट बगल वाले पेप्टाइड बॉन्ड को अटैक करेगी और उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगी, जिसकी वजह से जो हमारे सबस्ट्रेट होंगे वो अलग अलग पेप्टाइड्स में टूट जाएंगे. मतलब कि हमारा जो प्रोटीन होगा, जो सबस्ट्रेट होगा, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा पेप्टाइड्स में, जो कि हमारे काइमोट्रिप्सिन का फंक्शन है. क्यों? क्योंकि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और इसका क्लीवेज साइट जो है वो बल्कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के बगल वाली पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं. बल्कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हमारे कितने हैं? 3 हैं. एक है फेनिलएलनिन, दूसरा है टायरोसिन और तीसरा है ट्रिप्टोफैन.
So this is all about the action of chymotrypsin. Hope you enjoyed the video. Thank you for watching.